Morning, students. Today we are going to study the chapter number first of our second book, Panorama. We called it supplementary book. The first chapter is The Tiger King. Is written by Kalki. Kalki is a short name of Mr. Ramaswamy Iyer Krishnamurti. Ramaswamy Iyer Krishnamurti belonged from Tamil and he was a Tamil writer. तमिल राइटर होने के साथ साथ वे एक पत्रकार, एक कवि, एक समीक्षक, एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता भी थे। उनको शॉर्ट नेम या पेन नेम जिसको कहा जाता है, कल्कि के नाम से जाना जाता है। द टाइगर किंग जो एक स्टोरी मिस्टर रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति ने जो लिखी है, उसके बारे में अपन थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। द टाइगर किंग्स इज़ ए स्टोरी ऑफ ब्रेव एंड ऑब्स्टिनेट मैन की है जो टाइगर किंग नाम की एक कहानी है। यह एक बहादुर और हठी व्यक्ति की कहानी है। इट वॉज प्रेडिकेटेड एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ दैट ए टाइगर वुड कॉज हिज डेथ, कि उसके जन्म के समय यह प्रेडिकेशन यानी भविष्यवाणी की गई थी कि उसकी जो डेथ का कोज है यानी उसकी मृत्यु का जो कारण है वह एक टाइगर रहेगा। सो ही डिसाइडेड टू किल ऑल द टाइगर, इसलिए उसने सभी बाघों को मारने का निर्णय कर लिया। ही किल्ड मैनी टाइगर्स विद ग्रेट क्रूअल्टी, और उन्होंने बहुत अधिक बाघों को बड़ी ही निर्दयता के साथ मारा। His whim took life so many innocent animals, but what is to be must happen at any cost, so it happened. उसकी इस whim यानी सनक ने बहुत सारे निर्दोष जानवरों की जान ले ली, किंतु जो होना है उसे हर कीमत पर होना था। ऐसा इसलिए ही घटित हुआ। आफ्टर किलिंग सो मैनी टाइगर्स, बहुत सारे बाघों को मारने या शिकार करने के पश्चात ए स्मॉल वुडन टाइगर कॉज्ड हिज डेथ। बहुत सारे बाघों की निर्मम हत्या करने के बाद एक छोटा लकड़ी का बाघ उसकी मृत्यु का कारण बना। Thus came the painful end of a heartless king who had no sympathy for wildlife. इस प्रकार से एक हृदयहीन, बिना हृदय के राजा का दुखद अंत हुआ, जिसे वन्य जीवों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। सहानुभूति नहीं थी। The Tiger King have 5 parts, and today we will study the part first. First of all, I will give you a model reading of part first, that you can solve the difficult words and you can write pronunciation of the difficult words. The lesson start. The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of this story. He may be identified as His Highness Jamidar General, Kiledar Major, Satyagraha Samahari, महाराजा धीराज, विश्व भुवनन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK. But this name is often shortened to the Tiger King. I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. I have no intention of pretending to advance only to
And in a strategic withdrawal, even the threat of a Sukht bomber will not throw me off track. The Sukh, if it like, can beat a hasty retreat from my story. Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. But there is no chance of its fulfillment. As Bharat said to Ram about Dasrath, the Tiger King has reached that final adobe of all living creature. In other words, the Tiger King is dead. The manner of his death is a matter of extraordinary interest. It can be revealed only at the end of the tale. The most fantastic aspects of his demise was as soon as he was born. Astrologers had foretold that one day Tiger King would actually have to die. The child will grow up, become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions, but they bit their lips and swallowed hard. When compelled to continue, the astrologers came out with it. This is a secret which should not be revealed at all. And yet we are forced to speak out. The child born under this star will one day have to meet its death. At the very moment a great miracle took place, an astonishing phrase emerged from the lips of 10-day-old Jinali, Jung Jung Bahadur. O wise prophets! Everyone stood transfixed in stupefaction. They looked wildly at each other and blinked. O wise prophets, it was I who spoke. This time there were no grounds for doubt. It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the word so clearly. The chief astrologer took off his spectacles and gazed intensely at the baby. All those who are born will one day have to die. We don't need your prediction to know that. There would be some sense in it if you could tell us the matter of the death. The royal infant uttered these words in his little squeak voice. The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. A baby barely 10 days old opened its lips in speech. Not only that, it is also raised intelligent questions. Incredible, rather like the bulletins issued by the War Office. Then facts. The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. The prince was born in the hour of the bull. The bull and the tiger are enemies. Therefore, death comes from the tiger. He explained, you may think that Crown Prince Jung Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. Let tigers beware. This account is only a rumor rife in Pratibandhapuram. But with hindsight, we may conclude it was based on some truth. तो विद्यार्थियों, अपन ने इसके
पहले भाग की जो रीडिंग लगाई है उसमें इसकी कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स अपने सामने आए होंगे। अपन साथ में ही उनका ट्रांसलेट भी करेंगे। अपन अब इस पहले भाग का हिंदी अनुवाद करते हैं। तो अपना चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो प्रतिबंधपुरम का जो महाराजा है इस कहानी का नायक है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल किलेदार मेजर सत्यव्याघ्र समाहरी महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD SCTC और CRCK, but this name is often shortened to the tiger। अपन ने यहाँ पर जहाँ से चैप्टर स्टार्ट किया है तो हमें वो पता चला है कि इस कहानी का जो हीरो है, नायक है, वह प्रतिबंधपुरम का महाराजा है। अब उसे यहाँ पर कितने नामों से पुकारा गया है उनका यहाँ पर नाम बताया गया है कि उसे महाराजा जमींदार जनरल कहते हैं, किलेदार मेजर कहते हैं, सत्यव्याघ्र संहारी कहते हैं, महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट कहते हैं, सर जिलानी जंग बहादुर के नाम से भी पुकारते हैं। कुछ यहाँ पर उसके इंग्लिश नेम्स दिए गए हैं जैसे MAD SCTC या CRC के नाम से उसे जाना जा सकता है। लेकिन बट जो यहाँ पर लिखा गया है आगे, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। लेकिन प्राय इस नाम का जब संक्षिप्तीकरण शॉर्टन किया, छोटा किया जाता है तो उसे बाघ राजा का नाम दिया जाता है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज द टाइगर किंग। अब मैं आपको यह बतलाने आया हूँ कि उसे बाघ राजा के नाम से क्यों जाना गया, क्यों उसका नाम बाघ राजा रखा गया। आई हैव नो इंटेंशन टू प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। मेरा यहाँ पर जो आने का कारण है, जो मैं आपको बतला रहा हूँ कि उसे बाघ राजा के नाम से क्यों जाना जाता है, मेरा आगे बढ़ने का बहाना करने का ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं नीतिगत रूप से पीछे हटूंगा। तो यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड आए जैसे एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण, प्रिटेंडिंग यानी बहाना बनाना, स्ट्रेटेजिक यानी नीतिगत। तो ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं ये आप अपनी नोटबुक में अलग से लिख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। इवन द थ्रेट ऑफ ए सूतक या स्तूक नाम इसे अपन बोल सकते हैं, स्तूक बम वर्षक। स्तूक बमवर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रेक, कि यहाँ पर कोई भी स्तूक बम वर्षक की धमकी भी मुझे अपने मार्ग से नहीं हटाएगी। तो थ्रेट का मतलब हो गया यहाँ पर धमकी, और ट्रैक यानी रास्ता, मार्ग। द स्तूक इफ इट लाइक कैन बीट ए हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। तो यहाँ पर स्तूक एक नाम बताया गया है, हेस्टी का मतलब जल्दीबाजी में, और रिट्रीट का मतलब वापस मुड़ना। तो यहाँ अपना राइटर कहता है कि स्तूक यदि चाहे तो वह शीघ्र से शीघ्र मेरी कहानी से पीछे हट सकता है। नेक्स्ट जो इसका पैराग्राफ है कि राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ विटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। राइट इन द स्टार्ट यानी प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही जो अपन बाघ राजा के बारे में कहानी पढ़ रहे हैं कि उसके बारे में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना को प्रकाश में लाना आवश्यक है। तो इम्पेरेटिव का मतलब हो गया यहाँ पर अत्यावश्यक, और वाइटल का मतलब हो गया अत्यधिक। एवरीवन हु रीड्स of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। यानी जो भी व्यक्ति यह कहानी पढ़ेगा उसकी
यह नेचुरल यानी स्वाभाविक इच्छा होगी कि वह ऐसे एक उत्साही व्यक्ति से साक्षात्कार का अनुभव प्राप्त करे, यानी वह उससे फेस टू फेस आमने सामने उससे मिले, ऐसी उसकी इच्छा होगी। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन उसकी इस इच्छा को, मंशा को फुलफिलमेंट करने का कोई भी चांस नहीं है, यानी उसे पूर्ण होने का कोई भी मौका नहीं है। एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसे कि भरत ने अपने भाई राम को दशरथ के बारे में कहा था, द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल एडोब ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। जैसा कि भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था, उसी प्रकार बाघ राजा सभी जीवित प्राणियों के अंतिम घर पर जा चुका है। एडोब का निवास स्थान या घर, क्रिएचर यानी प्राणी। इन द अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड, और अन्य शब्दों में यदि कहें तो जो बाघ राजा है वह मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। तो उसकी जो मृत्यु का ढंग था, मैनर था, तरीका था, वह असामान्य रुचि का विषय है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और इसका जो भेद है, रिवील यानी भेद खोलना, इसका जो भेद है वह जब कहानी समाप्त होती है, जब कहानी समाप्त होती है उस वक्त ही, उस समय ही इसका भेद खुल सकता है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ हिज डिमाइज वाज दैट एज सून एज ही वाज बोर्न, और जो सबसे अनोखा पहलू उसकी मृत्यु का है वह यह था कि जैसे ही वह पैदा हुआ, as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. Astrologers जो ज्योतिष थे, उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन बाघ राजा को वास्तव में मरना पड़ेगा, actually have to die. The child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions, but they bit their lips and swallowed hard. जैसे ही उन्होंने ये भविष्यवाणियाँ की कि बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा बनेगा, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, वीरों का वीर बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, यानी वह चैंपियन, आप इस शब्द से ही जान गए होंगे चैंपियन क्या होता है, यानी विजेता, विजेताओं का विजेता बनेगा। ऐसी उन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, लेकिन बीच में ही, अपनी भविष्यवाणी के मध्य में ही उन्होंने अपने होठ काट लिए और थूक निकलने लगे, यानी बोलते उनकी बंद हो गई। वे कुछ बोलना चाहते थे लेकिन अब वे बोल नहीं पा रहे थे। When compelled to continue, the astrologers came out with it. Compelled का मतलब हो गया यहाँ पर उन पर दबाव डालना, यानी उनको बाध्य करना, कि जब भविष्यवक्ताओं को बाध्य किया गया तो उन्होंने यह बताया कि यह जो बालक है उसमें के जन्म में बहुत बड़ा रहस्य है। तो दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, कि यह एक ऐसा रहस्य है जिसे बिल्कुल भी प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा उस भविष्यवक्ताओं ने बताने का प्रयास किया। उन पर फिर और दबाव डाला गया। जब उन पर और दबाव डाला गया तो उन्होंने अपना मुंह खोला, यानी एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, कि जैसे हमें और अधिक बाध्य किया गया, तो उन्होंने बताया
कि यह एक रहस्य जिसे बिल्कुल भी प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, फिर भी हमें बोलने पर मजबूर किया गया है। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। स्टार का मतलब यहाँ पर तारा नहीं है बल्कि नक्षत्र है, कि इस बालक का जो जन्म हुआ है वह ऐसे नक्षत्र में हुआ है कि उसे एक दिन मरना पड़ता है। द चाइल्ड विल grow up, become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions, but they bit their lips and swallowed hard when compelled to continue. The astrologers came out with it. This is a secret which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak. The child born under this star will one day have to meet its death. यानी ज्योतिषियों ने सार गर्भित बात बताते हुए कहा कि बालक का जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ है कि उस नक्षत्र में जन्मने वाले व्यक्ति को मरना ही पड़ता है। एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिराकल टुक प्लेस। और उसी क्षण एक महान दैविक चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10-day-old जिलानी जंग जंग बहादुर, कि जो 10 दिन की आयु वाला बालक था जिसका नाम जिलानी जंग जंग बहादुर रखा गया था, उसके होठों से एक आश्चर्यजनक एस्टोनिशिंग जो फ्रेज या वाक्यांश है वह निकला। ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान संतों। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेक्शन। और प्रत्येक व्यक्ति जो वहाँ पर खड़ा हुआ था, जैसे ही जिलानी जंग जंग बहादुर बोला ओ बुद्धिमान संतो, प्रत्येक व्यक्ति मूर्खता से जड़ हो गया, यानी वे कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। तो यहाँ पर 2 शब्द हैं, ट्रांसफिक्स्ड यानी हक्का बक्का हो जाना, और स्टूपिफिकेशन यानी जड़ या स्तंभित हो जाना। दोनों ही कठिन वर्ड हैं, आप इनको याद करेंगे। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। उन्होंने एक दूसरे की ओर बड़े ही रहस्यमय ढंग से एक दूसरे की ओर देखा और बोला ओ वाइज नहीं सॉरी एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेक्शन। दे लुक्ड वाइल्ड एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। उन्होंने अपनी आंखें झपझपाई और एक दूसरे की ओर देखा। ओ वाइज प्रोफेट्स, इट वाज आई हु स्पोक। हे बुद्धिमान संतों, ये मैं बोल रहा हूँ। यानी वह 10 दिन का जो बालक था वह बोल रहा था। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट। और इस समय जो बच्चा बोल रहा था, इस समय शंका का कोई भी आधार नहीं था। यानी पहले ये सोच रहे थे कोई और बोल रहा है, लेकिन दूसरी बार जैसे ही बोला, उनके मन की जितनी भी शंकाएं थी उसका ग्राउंड हट गया। इट वॉज द इन्फेंट born just 10 days ago who enunciated the word so clearly. Infant यानी शिशु, enunciated यानी स्पष्ट रूप से उच्चारण करना। तो यह वह 10 दिन का बालक था जिसे 10 दिन ही पैदा हुए थे। वह इतनी स्पष्ट आवाज में बोल रहा था, बिल्कुल क्लियर बोल रहा था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took off his spectacles and gazed intently at the baby. और जो मुख्य ज्योतिष था, चीफ एस्ट्रोलॉजर था, उसने अपना चश्मा उतारा और बच्चे को ध्यान से देखने लगा। All those who are born will one day have to die. बच्चे ने बोला कि वे सभी लोग जो पैदा होते हैं उन्हें एक दिन मरना ही होता है, कोई नई बात नहीं है। We don't need your prediction to know that. उस बात को जानने के लिए हमें तुम्हारी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। There would be some sense in it if you could tell us the manner of the death. उस बच्चे ने कहा कि यदि इसमें कोई अर्थ हो सकता है, यदि आप मृत्यु का कोई सेंस है, तरीका है, कारण है, वह बता सकें। The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. Squeaky voice यानी चूं चूं ची ची करने वाली आवाज।
स्क्वीकी वॉइस। तो जैसे ही वह शाही शिशु था, उसने अपनी चूं चूं चीची की आवाज़ में इन सारे शब्दों का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट किया। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। जो मुख्य ज्योतिष था, उसने अपनी उंगली आश्चर्य से अपनी नाक पर रख ली। ए बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच। कि एक 10 दिन का बालक बोलने के लिए अपनी होठ खोलता है। नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। अरे वह केवल बोल ही नहीं रहा है, बल्कि बुद्धिमता प्रश्न भी पूछ रहा है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। rather like the bulletins issued by the war office than facts। जैसे कि युद्ध कार्यालय तथ्यों की बजाय कोई समाचार जारी कर दे, इस प्रकार का भाव वहां पर दिखाई दिया। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince। उस मुख्य ज्योतिष ने अपनी नाक से उंगली हटाई और छोटे राजकुमार पर अपनी दृष्टि गड़ा दी। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। यानी राजकुमार का जो जन्म है, बुल का मतलब यहाँ पर वृषभ काल में हुआ था। द बुल एंड द टाइगर्स आर एनिमीज। वृषभ और बाघ दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। Therefore death comes from the tiger। इसलिए इस राजकुमार की जो मृत्यु है, वह मृत्यु बाघ के द्वारा ही होगी। He explained, उसने इस बात का वर्णन किया। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger। जैसे ही उन ज्योतिष ने इस बात को बताया कि इनकी मृत्यु बाघ के द्वारा होगी, तो आप सोच सकते हैं राज मुकुट के उत्तराधिकारी राजकुमार जंग बहादुर ने जब बाघ शब्द सुना होगा तो वह कांप गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपेंड। किंतु वास्तव में ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ। As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl। जैसे ही उसने यह शब्द सुने, उस राजकुमार ने गुर्राहट भरी आवाज निकाली। ग्रोवल यानी गुर्राहट भरी आवाज निकालना। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स। उसके होठों से भयभीत करने वाले शब्द निकले। लेट टाइगर्स बीवेयर। राजकुमार बोले, अरे भयभीत मुझे नहीं, सारे सावधान, और सारे जो बाघ हैं उन सारे बाघों को सावधान होना होगा। लेट्स टाइगर्स बीवेयर। दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर राइफ इन द प्रतिबंधपुरम। रूमर का मतलब अफवाह होता है, कि यह जो अफवाह है यह उस पूरे प्रतिबंधपुरम में फैल गई। बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ट ऑन सम ट्रुथ। परंतु घटित होने पर ही हम सब यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह किसी न किसी सत्य पर आधारित थी। तो यहाँ पे जो शब्द आया राइफ यानी फैली हुई, और हाइंडसाइट घटित होने से समझना। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने टाइगर किंग नामक चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसका ट्रांसलेशन किया है। उससे संबंधित अपन ने इस कहानी के बारे में जो अबाउट द स्टोरी है, अबाउट द राइटर है, वह भी अपन ने इसमें देखा है। आप सब इसकी रीडिंग लगाना। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।